to all my lovely Spartians. How are you doing? I really hope you are fit and fine. So to continue the series of One Shot, I'm here with another exciting chapter from class 12th, which is reproductive health. The questions from this chapter or the weightage of the chapter in NEET is not much, but still, if 2 or 3 questions are asked from this chapter, they are very scoring, very direct questions. Generally, they try to give either the techniques, the art techniques, or assisted reproductive technology techniques, or they ask the prevention conception methods in the match the following forms. So a lot of things get covered even in 1 or 2 questions being asked, so you cannot leave any chapter. Moreover, the weightage of the chapter might vary. That would decide how much time you should devote in studying each chapter. But you need to make sure, in order to score really good in your exams, you have to do every chapter, so that even if you get 1 question from that chapter, you are able to answer it correctly and do not lose any marks, because every 1 mark will make a big difference in your overall percentile score, right? So we'll begin with this chapter, reproductive health, and we'll see each topic one by one. First, before beginning, let me ask to you, what do you mean by reproductive health? If you could answer in the comment section, you can. Otherwise, I am here to tell you, of course. See, when we talk about reproductive health, the first thing that clicks in our mind is related to the health of reproductive organs, which is very correct. Reproductive health is related to the proper functioning and development of our reproductive organs. But apart from it, there are many other aspects included in the reproductive health. For example, World Health Organization has also introduced certain aspects like the reproductive health should also include the physical, mental, social well-being of an individual along with the health of the reproductive organs. So let's see it one by one. Now, reproductive health, as we also said, that it is something related to reproduction. The first thing that would definitely click up in the mind is something related to our reproductive organs. Normal functioning of the body, organs, the reproductive organ. So reproductive health refers to, when we talk about health, it's the functioning. When we are talking about reproduction, it's related to reproduction only. So reproductive health would include healthy reproductive organ with the normal functioning. अगर हम इस 2 वर्ड को वर्ड्स के मीनिंग को एक्सप्लेन करें, then it would mean the ability or reproductive health would refer to having normal reproductive organs or healthy reproductive organs with their normal functioning. They are doing their functions, that is production of the gametes, the sex cells or the sex hormones properly, right? तो वो हमारा किस में आएगा? reproductive health में. Then WHO states that reproductive health is a state of complete well-being of an individual. So according to World Health Organization, reproductive health जो है वो सिर्फ reproductive organ से related नहीं हो सकती. It is also related to the physical, social, mental well-being of an individual. So they state that reproductive health is a state of complete well-being of an individual in physical, functional, emotional, behavioral and social aspects of reproductive system. So relative तो reproductive system से ही होगा, but उसमें भी ये सारे aspects आने चाहिए. आप फिजिकली रिप्रोडक्टिव वाइज अच्छे हैं, फंक्शनली भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सही हैं, इमोशनली ऑल्सो यू आर क्वाइट बैलेंस्ड, राइट? इमोशनल स्टेट भी होनी चाहिए, सोशल एस्पेक्ट भी आएगा और बिहेवियरल एस्पेक्ट भी आएगा. WHO, as I said, it stands for World Health
organization. Aspects, so these all are the aspects of reproductive system: physical, functional, emotional, behavioral, social. ये सारे एस्पेक्ट्स आपके कवर अप होने चाहिए किसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. Reproductive health and prevention of sexually transmitted diseases. So there is a alarming need for the prevention of STDs. Reproductive health problems nowadays are specifically leading to डेथ एज वेल. अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो दे कैन बी फेटल ऑल्सो. नॉट ऑल बट सम केसेस में वो फेटल भी हो सकता है. इन इंडिया मेटर्नल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज हाई. अगर आप डेटा उठाएं और देखें तो इंडिया में जो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है. ज़्यादातर जो डेथ हो रही हैं वो मदर्स या फिर इन्फेंट्स की ही हैं. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ नॉट गुड and is not taken care of. One of the problem related to why the mortality rate of the infants or the mother is increasing, as I said, reproductive health is not good, and the reason is the major reason comes out to be sexually transmitted disease. Which sexually transmitted disease are diseases which are transmitted from one individual to another through reproductive pathway. So mothers, they take up these disease causing organism from the partner and then they are being transferred even to the infants through the placenta, right? तो उसकी वजह से जो maternal और infant mortality rate है वो बढ़ता जा रहा है इंडिया में. इसलिए there is a need to stop these diseases from transmitting and hence we require prevention of these diseases. Approximately 2 million people in India live with HIV or AIDS. AIDS is acquired immunodeficiency syndrome which is caused by a virus called human immunodeficiency virus. Now, though AIDS is sexually transmitted disease also, as well as it is a fluid transfusion disease as well, means it can transmit from one individual to another with transfusion of fluid. The fluid can be blood, it can be saliva, it can be semen. ब्लड में जैसे नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स अगर यूज़ हुई एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में तो भी एड्स जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है. और ये सेक्सुअल पाथवे से भी ट्रांसमिट होता है. HIV सेक्सुअल पाथवे से भी ट्रैवल कर सकता है. HIV वायरस कैन इवन क्रॉस प्लासेंटा एंड रीच द इन्फेंट. सो ये जो डिजीज़ है इट इज़ स्प्रेडिंग टू एन अलार्मिंग रेट and it is a deadly disease because in this disease the immune system of the individual is compromised with the time, due to which the individual suffer from a group of diseases called syndrome of disease. Because the immune system has become compromised or weak, so they are unable to fight with the normal disease causing organisms as well, जो एक healthy individual बहुत easily fight कर जाता है. Everyone has the right to enjoy a good reproductive health and hence it is important for everyone to take care of their reproductive health as well as the other aspects जो हमने डिस्कस किए ताकि हर कोई reproductively healthy रह सके. So, India में family planning programs were initiated in 1951. ये आपको नीट में आ सकता है, आता भी है, तो इसका ईयर याद रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में एक प्रोग्राम इनिशिएट हुआ 1951 में जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. अब इस प्रोग्राम में होता क्या है? सो अंडर दिस प्रोग्राम द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्लान एंड प्रोग्राम at national level to attain
total reproductive health as the social goal. तो इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का एम क्या था कि हम नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपना एक सोशल गोल बनाएंगे एंड वी विल अचीव इट दैट आर इंडिया एवरी इंडिविजुअल इन द इंडियन इज रिप्रोडक्टिवली healthy. So to achieve this social goal of having a total reproductive health, a lot of steps has to be taken. Now let's check little bit of our knowledge, whatever we have done till now. Before, as I say always, I answer, you try to answer it so that you also know whether you are able to understand the concept or not, and even test your knowledge. So the first question says, the first country in the world to initiate action plans and program at national level to attain total reproductive health as a social goal, जो हमने बिल्कुल अभी बात की कि it was initiated in India. So our answer is option C. अगर आपसे ईयर पूछते तो आप 1951 करके आते. ठीक है. Next, family planning programs were initiated in, जैसे अभी हमने बात भी की, so it will be in 1951, option A. Now, coming to RCH program and amniocentesis, the other two concept of the chapter. So, सबसे पहले हम बात करते हैं RCH program की. RCH refers to reproductive and child health program. So, R is for reproductive, C is for child, H is for health. Reproductive child health programs क्या है? देखिए, अंडर RCH प्रोग्राम, जैसे अभी हमने बोला कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इनिशिएट हुआ, जिसका मेन एम था कि हम एक टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करेंगे कि इंडिया में सभी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हों. अब उसको अगर सोशल गोल बनाया गया है तो उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मेक श्योर करेंगे सर्टेन थिंग्स सो दैट वी कैन अचीव आवर मेजर सोशल गोल विच इज़ दी टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो जो RCH प्रोग्राम है इसी प्लानिंग के अंदर वो क्या क्या चीज़ें फोकस करते हैं, ये आपको एक पैराग्राफ में बुक में दिया है, तो आपको उसमें पॉइंटर्स बना लेने हैं सो दैट अगर स्टेटमेंट बेस में आता है कि आउट ऑफ दिस कौन कौन से जो है रोल्स RCH के अंडर आते हैं, तो यू शुड बी एबल टू सेलेक्ट इट प्रॉपरली. सो RCH विल टेक केयर ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मेकिंग श्योर दैट all the children are immunized for the diseases for which vaccines are available. Next, supply of nutritional food to the pregnant women, taking care कि pregnant women को nutritional food मिल सके. बहुत सारे एरियाज में आज भी ऐसे है जहाँ पर the pregnant females are not able to get proper nutrition, जिसकी वजह से वो बहुत फिजिकली वीक होने लगते हैं और वीकनेस की वजह से ही at the time of delivery or before that complications occur and then we have the high mortality rate as we said. So under this program one of the small goal is also to make sure कि pregnant women जितनी भी है या females जो है उनको क्या मिले, nutritional food मिले ताकि malnutrition ना हो. One of the other aim under this was the Janni Suraksha Yojana was launched. So this Janni Suraksha Yojana is for promoting institutional. So this Janni Suraksha Yojana is for promoting institutionalized deliveries, मतलब proper deliveries of the pregnant females. So the next topic is female feticide, a burning problem in India. Female feticide, as the name suggests, female, the gender female, feti comes from the word fetus and side is killing, suicide says. So female feticide refers to killing of a female fetus inside the mother's womb itself, or we can say aborting a female fetus is called female feticide. The rate of female feticide increased tremendously in India
majorly because of low thinking levels, where every couple was desiring for a male, and if they found out the fetus to be female, it is followed by MTP, which is abortion. To check this or to control this thing, the government has put a ban on the sex determination test of the baby, and hence there is and will be regulation of the female feticide. If still any couple today tries to find out or determine the sex of the child, then definitely it is a punishable offense with an imprisonment or a fine plus fine charge as well. So female feticide refers to act of aborting a female fetus, as I said. Female feticide is a major social problem in इंडिया. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में आज बन चुकी है. सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस फर्स्ट बिकेम पॉसिबल इन इंडिया इन 1970s. और ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन फीटस का किया जाता है, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस. सो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो पॉसिबल हुआ 1970s में, वो कौन सी टेक्निक की वजह से हुआ? द नेम ऑफ द टेक्निक इज एमनियोसेंटेसिस. तो अब ये एमनियो वर्ड कहाँ से लिया गया है? द एमनियो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड which is present inside amnion, also called water bag in the layman language. Now first let me tell you, amniocentesis is not just the sex determination test. Rather, amniocentesis is a prenatal diagnostic test for the diagnosis of any congenital disease in the fetus by the help of determining the chromosomal aberrations. इसमें क्रोमोसोमल पैटर्न्स को डिटरमाइन करके डायग्नोसिस किया जाता है किसी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ का, जिसके साथ बेबी बॉर्न हो सकता है. अगर द डिजीज़ कैन बी फेटल for the fetus or the mother in future, then the doctor can suggest for MTP. Now since this test is based on the chromosomal pattern of the fetus, therefore the same test can be used to know the sex of the baby, because in human the sex determination mechanism is XY system. If the chromosomal pattern will easily show, if it shows XX it will be a female, or if it shows XY it will be a male. Hence the same test is used for determining the sex of the baby. The technology intended, जो main इसका टेक्निक का एम है, that is to detect the genetic abnormalities, as I said, in the fetus, but often misused to determine the sex of the fetus, and hence the sex determination is now completely banned in India. It is used to determine the sex of the fetus. Government banned this test for sex determination. Now this test can only be used to determine any congenital genetic defect जो by birth से हो सकता है, not for determining the sex of the child. So when it was banned, it was banned in 1976. 70s में टेक्निक आई और 76 में इस टेक्निक का यूज़ फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कम्प्लीटली इंडिया में बैन किया गया. सो हाउ दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड, देखिए ये जो है मदर की वूम में फीटस और उसके आसपास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं. वन ऑफ द एम्ब्रियोनिक लेयर इज द एमनियोटिक bag, or we can say amnion, and it is also called water bag, which is filled with a fluid called amniotic fluid. इस fluid को क्या बोलते हैं? amniotic fluid. इस fluid में fetus के skin cells होते हैं, ठीक है, वो भी होते हैं. और ये जो fluid होती है, it basically prevent desiccation of the fetus.
तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है, द फ्लूइड इज एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। तो देखो यहाँ पे फ्लूइड जब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो स्किन सेल्स हैं वो भी फ्लूइड में अंदर उसके साथ आएंगे, ठीक है, सिरिंज में आ गए। नाउ दिस पार्ट, ये जो पिंकिश पार्ट है वो प्लासेंटा है, ये एमनियोटिक फ्लूइड हो गई जो मैंने भी आपको मार्क करके दिखाई थी। दिस इज एमनियोटिक कैविटी और वी कैन कॉल इट एज द वाटर बैग। देन दिस इज द यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल, ठीक है। अब हमने जब एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज में लिया, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हेल्प इन सेपरेटिंग सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। तो जो भी इस मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं वो डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट होंगे, जहाँ पर जो आपके सेल्स हैं, स्किन सेल्स ऑफ द बेबी, दे विल फॉर्म द, being denser, they will settle down and form the pellet region. इन स्किन सेल्स को हम कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं, सेल कल्चर्स लगा सकते हैं, बायोकेमिकल स्टडीज़, क्रोमोसोमल एनालिसिस या फिर कोई भी एनालिसिस जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड से कर सकते हैं। Karyotyping is knowing the chromosomal pattern inside the cell, and hence you can also know the sex determination, you can know chromosomal aberrations जिसकी वजह से कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है बर्थ से ही, ठीक है। तो इस तरीके से ये किया जाता है। और फिर क्योंकि उस when this technique was introduced, it was misused to know the sex of the baby, which was followed by female feticide if the baby is found to be female, and hence 1976 में इस टेक्निक पर बैन करना पड़ा। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, it was introduced in 1987। यूज़ क्या था? It is invented for detecting developmental abnormalities in the fetus। तो ये जो टेक्निक है वो फीटस में किसी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको बहुत सारे अपने अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने पड़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोनोग्राफी। तो इस टेक्निक से आप डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स देख सकते हो फीटस में, वाइल इट इज़ डेवलपिंग, वो इमेज क्रिएट होती है उसमें। तो इसका मिसयूज़ क्या है? उसका भी मिसयूज़ ये हो सकता है क्योंकि उस डेवलपमेंटल जब आप डेवलपमेंटल पढ़ते हो, स्टडी करते हो, इसका भी मिसयूज़ किया जा सकता है। जब आप डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ते हो तो उस डेवलपमेंटल स्टेजेस में आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट भी पढ़ सकते हैं, और फिर इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी फीमेल तो it is followed by female feticide. Significant increase in the number of female feticide in the country. The government of India enacted the Prenatal Diagnostic Technique Act. तो एक हमारे रूल्स में ये ऐड हुआ, which is Prenatal Diagnostic Technique Act, to regulate and prevent the misuse of such techniques. तो कौन से ईयर में? 1994 में ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट लाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अकॉर्डिंग दीज टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। अब सेक्स ऑफ द बेबी पता ही नहीं होगा तो फीमेल फीटिसाइड्स नहीं होंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट चैप्टर पार्ट ऑफ द चैप्टर इंक्लूड the topic on STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये वो डिजीज़ हैं जो स्प्रेड करते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू सेक्सुअल पाथवे। They are also called reproductive tract infection, RTI, or we can call them as venereal diseases, VDs in short। आपको मैंने एक टेबल, एक लिस्ट बना के दे दी है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप याद करिए। वैसे तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इतने नहीं पूछे जाएंगे, बट कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता दूंगी कि एटलीस्ट उनके कॉजेटिव एजेंट्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट डिजीज इज गोनोरिया। इसका आपको कॉजेटिव एजेंट पता होनी चाहिए। इट्स अ बैक्टीरियम, निसेरिया गोनोरिये।
देन सिफिलिस, इसका भी आपको पता होना चाहिए. इट्स अ स्पाइरोकीट बैक्टीरियम, स्पाइरल शेप्ड, विच इज कॉल्ड ट्रेपोनेमा पैलिडियम. देन जेनाइटल हर्ब्स, ये भी पता होना चाहिए, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस. Genital warts and cervical cancer. Cervical cancer is very much in talk these days. So cervical cancer is caused by human papilloma virus. It is a very common type of cancer in females, right? So we do have a proper vaccines also for this cancer, prevention of this cancer, which can be administered in the late 20s. Females can get it administered to prevent cervical cancer chances. So this also you should know at least. Then comes trichomonasis. Then इसका trichomonas vaginalis है. ज़रूरी नहीं है कि इसका आप याद रखें. It's not. I haven't seen much question on the causative agent of this disease. Then chlamydiasis, which is called by Chlamydia trachomatis. Hepatitis B, hepatitis B virus, simple है. Then AIDS, I have already told you. HIV, human deficiency, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. तो इसका भी आपको पता होना चाहिए. एनी हाउ यू डू द साइकिल ऑफ HIV इन योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, in your human health and disease chapter, so you should know this as well. These are some of the diseases list I have given you, which are called sexually transmitted disease. Now some important points to learn is hepatitis B and genital herpes. ये जो दो disease हैं STDs, इनके बारे में, और HIV, इन तीनों के बारे में एक important चीज़ आपको समझनी है कि ये जो तीनों डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है वो सिर्फ सेक्सुअल पाथवे से ही नहीं बल्कि शेयरिंग ऑफ नीडल से भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाते हैं डिजीज़. सो यू शुड नो. आप इसको इसी तरीके से बना लीजिए कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ब्स और HIV इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है नीडल शेयरिंग से भी, इन्फेक्टेड नीडल. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, वो भी शेयर करने से हो सकता है, और बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड. तो अपार्ट फ्रॉम द सेक्सुअल पाथवे इट कैन स्प्रेड टू हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू these three things as well: sharing of the fluid, contaminated blood, or sharing of the surgical instruments or the needles. Not just this, the disease can also spread from the infected mother to the fetus. So from infected mother to the fetus also it can spread. Correct? I hope आपको ये समझ में आ गया और आपने important points जो मैंने आपको अभी समझाए वो मार्क कर लिए हैं. Now let's check our knowledge. So the first question is, hepatitis B and HIV are transmitted by, number 1, sharing of utensils, no. शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, येस, क्योंकि फ्लूइड कॉन्टैक्ट में आ सकती है इसके थ्रू. शेयरिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, येस. बोथ 2 and 3, yes. So both 2 and 3 is the correct option. So the next part of the chapter is reproductive health care program, birth care, need and methods. We have talked about STDs. Why it's an important topic of awareness? Because STDs, if left untreated, they may lead to many complications. Therefore, it is important that we are aware of these diseases, how they spread, and what preventive measures we must take to avoid such problems, right? So, for example, untreated STDs in women may lead to pelvic inflammatory diseases, PIDs in short. The pelvic region is the region below your abdomen where your reproductive organs, rectum and urinary bladder are placed. So there in that area inflammation can occur. Then it may lead to abortions, stillbirths or ectopic pregnancies. Ectopic pregnancy is the case where the blastocyst, instead of getting implanted in the uterus wall, it gets implanted in other regions like fallopian tube,
right? So those pregnancies are complicated and will eventually have to be aborted. Abnormal pregnancy that occur outside the uterus and the fetus generally cannot survive. Infertility or even the cancer of reproductive tract can occur. Therefore, it is very important that we are aware of the different STDs and their complications so that we can prevent these diseases from happening. As we discussed that certain STDs, they are even infectious or they can pass through transfusion of fluids. So it is important to be aware of them and follow the preventive measures. Age group of 15 to 24 years is more prone and faces high risk of these diseases. But no need to worry, we have different methods where you can prevent such diseases. Major threat to healthy society. So STDs, some STDs are even fatal, and if not fatal, they have got so many complications as we have seen, which are really harmful for the health. Therefore, it's one of the major threat to the reproductive health of the society. So reproductive health care programs जो होते हैं वो they are meant for prevention, अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ सच डिजीज. जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं जिनकी हमने बात की कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उनका यही एम है कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकें इन डिजीज़ को. इफ़ वी आर अनेबल टू प्रिवेंट, हो गया है तो अर्ली डिटेक्शन कैसे करें या फिर क्योर कैसे करें. तो आरसीपी प्रोग्राम्स इन्हीं 3 एरियाज या एरेना पर फोकस करते हैं. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं जो आपको लेने चाहिए. नंबर 1, अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स. यूज condoms compulsorily because condoms are one of the good barrier that prevents the disease causing organism from entering the body of a female during coitus. Then consulting qualified doctors for early detection of STDs and getting complete treatment. क्वालिफाइंग डॉक्टर्स से कंसल्ट करना, जो भी आपको प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स आप देख रहे हैं, या फिर अपना रेगुलर चेकअप भी, सो दैट यू कैन अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकें आप और फिर उसका एक कंप्लीट ट्रीटमेंट ले सके बिफोर इट्स टू लेट. सो दिस इज ओनली व्हेन यू आर अंडर द threat of infection. The next topic is birth control need and method. Why it is important to control the birth rate. जो growth rate है वो अचानक से बढ़ने लगा because of increase in the healthcare facilities जो पहले नहीं थी. malnutrition की प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई, तो जो हेल्थ है हर एक इंडिविजुअल की दैट स्टार्टेड इम्प्रूविंग. स्पेसिफिकली लाइक पहले जो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, तो अब वो मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो गया बेटा, कम हो गया क्योंकि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई. तो ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो अचानक से बढ़ने लगी है. दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द रेट ऑफ द population. But it is important to control our population growth rate because of the limited resources. जो nature की carrying capacity है वो उतनी नहीं है कि वो इतने सारे individuals को support कर सके. इसलिए it is important कि हम अपने population पर growth rate पर एक control रखें, एक check रखें. But जो probable reasons हैं वो क्या है ग्रोथ रेट में अचानक से इंक्रीज के. सो द प्रोबेबल रीजन फॉर ग्रोथ रेट आर डिक्लाइन इन द डेथ रेट. डेथ रेट जो है वो कम होने लगा बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज. देन मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन होने लगा. अकॉर्डिंग टू 2011 census is जनगणना, the population growth rate is still around 1.64%, the annual percentage. How to overcome population explosion? Population explosion refers to the tremendous increase in the growth rate, right?
तो हम कैसे कर सकते हैं? बर्थ कंट्रोल मेजर्स से। अगर हम बर्थ कंट्रोल मेजर्स फॉलो करें या हम अपने बर्थ कंट्रोल पर चेक रखें, एक कंट्रोल रखें, तो देयर इज़ अ वे टू डिक्रीज और टू basically control the growth rate. People should be motivated to have smaller families by using various contraceptive methods. तो smaller families को promote करना है कि everyone should use contraceptives if they are not planning to have a family, ताकि आप small families रखें. पॉपुलेशन ज़्यादा एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए बिकॉज रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो हम स्मॉलर फैमिलीज़ को प्रमोट कर सकते हैं. अब इसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देती हैं सो दैट पीपल गेट मोटिवेटेड टू हैव स्मॉलर फैमिलीज. 2 measures वर टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो स्मॉलर फैमिलीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 measures लिए. एक स्टैट्यूटरी रेज ऑफ marriageable age of females to 18 and males to 21 years. जो मैरिज होगी फीमेल और मेल की, वो द एलिजिबल मैरिजेबल एजेस 18 एंड 21. मेल के लिए 21 है और फीमेल के लिए 18 है. इससे पहले यू कैन नॉट मैरी, दैट्स नॉट द लीगल मैरिजेबल एज. तो लीगल मैरिजेबल एज आपको याद रखनी है. दूसरा तरीका जो भी मैंने आपको बोला कि आप स्मॉलर फैमिलीज को प्रमोट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू द कपल विद स्मॉलर फैमिलीज सो दैट पीपल गेट मोटिवेटेड फॉर इट. तो इंसेंटिव्स देके भी ये किया जा सकता है जो गवर्नमेंट करते हैं. बर्थ कंट्रोल मेजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट एंड सेप्शन वर्ड आया कंसीविंग से, सो अगेंस्ट द कंसीविंग, यानी मेथड्स दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द स्पर्म टू फॉर्म zygote, which means controlling the birth. Intentional prevention of conception, which is fertilization by natural or artificial means. तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है इंटेंशनली कंसेप्शन या फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से. अब नेचुरली कैसे कर सकते हैं और आर्टिफिशियली कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो एज आई सेड, कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट एंड कंसेप्शन इज conceiving or fertilization. So all those methods which are against the fertilization of the male and the female gamete to form zygote comes under contraceptive methods. Ovulation. An ideal contraceptive prevents pregnancy by interfering with ovulation. तो जनरली जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो ओव्यूलेशन को इंटरफेयर करते हैं. नॉट ऑल बट येस, certain number of the contraceptive measures prevent ovulation कि एग का रिलीज ही ना हो या ओवम का रिलीज ही ना हो fallopian tube में from the ovary and the sperm will not be able to meet it. Then the contraceptive methods also interfere with fertilization. अगर ओवम रिलीज भी हो गया है तो वो फर्टिलाइज ना हो पाए, या फिर इम्प्लांटेशन. तो जो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो इन 3 चीज़ों को इंटरफेयर करती है. अगर ये 3 चीज़ों को किसी तरीके से प्रिवेंट किया जाएगा तो कंसेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन या बर्थ नहीं होगा, है ना. तो या तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे या फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे. कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स किस मेथड पर फोकस करते हैं, दैट वी विल लुक इनटू दिस चैप्टर वन बाय वन. अब किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सबसे पहले एक आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होती है जो यूज़र फ्रेंडली हो, विच गिव्स प्रिवेसी टू द यूज़र to be able to use it, so it is user friendly. Second, it should be easily available. Third,
इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, उसका कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए कि यूज़ करने पर इट शुड बी एबल टू गिव यू रिजल्ट्स, यानी प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शंस, एंड रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो बिकॉज this contraceptive methods can be used when the couple do not want to have a family right now, तो उस समय ये contraceptive methods use हो, but later on if they decide to have one day they should be able to conceive then, तो ये जो भी आपकी contraceptives हो वो reversible हो, यानी जब couple plan करे उसको यूज़ कर ताकि जब कपल प्लान करे फॉर द फैमिली दे कैन डू इट विदाउट एनी इफेक्ट्स। सो रिवर्सिबल होना चाहिए और डेफिनेटली साइड इफेक्ट लीस्ट होने चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हाई चाहिए और साइड इफेक्ट्स लीस्ट होने चाहिए। इट शुड नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल लाइफ ऑफ द यूज़र। तो ये कुछ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर्स हैं जो होने ही चाहिए। Now we have to look into the methods of contraceptions one by one. अभी हमने देखा कि contraceptive methods या तो ovulation prevent करते हैं या fertilization या फिर implantation। तो कौन सा method कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है that we are going to learn now. Methods of contraception natural भी हैं और artificial भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पर, जहाँ पर हम नेचुरली कंसीविंग को रोक सकते हैं। ये जो नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स तो लीस्ट हैं बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल फ्रॉम आउटसाइड, बट इनके जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है वो थोड़ी कम होती है। द चांसेस ऑफ देयर फेलियर आर लिटिल हायर। So we have natural or traditional methods. Barrier method, we'll also look into IUDs, then the oral contraceptive pills, injectables, implants, vaginal rings, skin patches, surgical methods. So इस chapter में हम ये सारे methods one by one देखेंगे। सबसे पहले हम natural method of contraception को discuss करेंगे। जैसे मैंने बोला जो natural method of contraception है वो natural ways पे focus करते हैं। इनका failure rate high हो सकता है but side effects least होते हैं। So they are also called the traditional ways of contraceptions. क्या क्या किया जा सकता है इस केस में, हाउ दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग। सो द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ स्पर्म मीटिंग द ओवम। इन सभी नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का प्रिंसिपल क्या है कि ओवम और स्पर्म को मीट करने से रोकना है। दैट इज द ओनली नेचुरल वे वी कैन प्रिवेंट द कंसीविंग या फिर कंसेप्शन। तो हर मेथड का प्रिंसिपल याद करना इम्पॉर्टेंट है। आपको मेरे साथ साथ हर मेथड के प्रिंसिपल्स आप लिखेंगे। सबसे पहले नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का प्रिंसिपल लिखिए। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ स्पर्म मीटिंग द ओवम। स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज नहीं होने देना है। नोट इट डाउन। देन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन 3 तरीके के हैं। सबसे पहले है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक मीन्स जो हर इंटरवल ऑफ या एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप रिपीट कर सकते हैं, यूज दिस मेथड, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एब्स्टिनेंस मतलब होता है अवॉइडिंग, है ना। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज अ नेचुरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग कॉन्ट्रासेप्शन बाय अवॉइडिंग द fertilization or coitus during the most fertile period, that is 10th to 17th day of the whole menstrual cycle। जो सबसे fertile period होता है वो menstrual cycle का 10th to 17th day होता है, जब ओव्यूलेशन होता है बॉडी में। तो उस समय स्पर्म और ओवम के चांसेस ऑफ मीटिंग आर हाईएस्ट। फर्टिलाइजेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब स्पर्म एंड ओवम आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम, यानी एक सिंक्रोनाइजेशन हो उनके बीच, रिलीज के बीच में। तो 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज इज कंसिडर्ड द मोस्ट फर्टाइल फेज। तो इस फेज में
अगर कोइटस को अवॉइड किया जाए तो द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड द ओवम एट द सेम टाइम विल बी हाईली रिड्यूस्ड। इसके अलावा किसी और डे पर कोइटस विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन प्रोबेबली, हालांकि फेलियर के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज सबका प्रॉपर 28 या 29 डेज का नहीं होता है। सो इन दिस मेथड द कपल अवॉइड और एब्सटेन, जैसे मैंने बोला अवॉइड मतलब एब्सटेन मतलब अवॉइड करना या प्रिवेंट करना। सो दे एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 10th to 17th डे। इस 10th to 17th डे को हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टाइल पीरियड, क्योंकि एक क्वेश्चन नीच में आता है कि विच डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर कंसिडर्ड as the fertile period. So it is the 10th to 17th period day, ठीक है, of the menstrual cycle। तो इन दिनों में कोइटस को अवॉइड करना है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट फर्टाइल पीरियड, जिसके दौरान ओव्यूलेशन होता है यानी रिलीज ऑफ ओवम होता है। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दिनों में अवॉइड करना है। सेकेंड मेथड इज कोइटस इंटरप्ट्स। सो कोइटस इंटरप्ट्स में क्या किया जाता है? द पीनस इज बेसिकली विड्रॉल फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। तो कोइटस इंटरप्ट मतलब कोइटस को इंटरप्ट करना बाय विड्रॉइंग द पीनस फ्रॉम द वेजाइना। सो विड्रॉल ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, विड्रॉल in this method the male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation। तो advantage क्या होगा? Again this will avoid insemination, the sperms will not be released into the vagina and hence they will not reach the fallopian tube where the ovum might be present for fertilization। Third method, natural method, is lactation amenorrhea method। Lactation amenorrhea, amenorrhea is no menstruation, so it is considered that after the delivery के 6 months तक के बाद तक there is no menstruational phase or the menstruational cycle in the female body up to 6 months and hence during that period the coitus can be done because the chances of fertilization will be nil, क्योंकि फीमेल की बॉडी में इस समय menstrual cycle नहीं हो रही है। There is no fertile period, there is no ovulation. So ovulation generally will not occur during the period of intense lactation. Lactation means milk production by the woman following parturition यानी delivery। Some couples utilize the contraceptive benefit of this method, but this is effective only up to 6 months following parturition। डिलीवरी के बाद 6 महीने तक ही ये इफ़ेक्टिव है। उसके बाद फिर वो जो लैक्टेटिंग मदर होती है 6 मंथ्स बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशनल साइकिल उनमें एक्टिव हो जाता है। तो एडवांटेज अगेन यही है कि इफ़ दिस मेथड इज़ यूटिलाइज्ड देयर विल बी नो कंसेप्शन। हालांकि इट इज़ एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स टू अवॉइड coitus during this period because the body of the mother is quite weak। Effective only up to 6 months जैसे कि मैंने आपसे कहा। Let's check the knowledge। Let's check our knowledge now। Lactation amenorrhea is effective up to a maximum period of 8 months following parturition, 4 months following parturition और 6 months या 2 months। So as we have done कि ये मेथड 6 महीने तक ही इफ़ेक्टिव होता है। सो 6 months following parturition। An ideal contraceptive for female to delay pregnancy is, so अगर प्रेगनेंसी को डिले करना है फीमेल के लिए सबसे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं IUDs, जो हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। The chances of fertilization are very high during, so that's the fertile period 10th to 17th day of menstrual cycle। The next part is barrier methods of contraception। इससे पहले अभी हमने natural methods देखे। Now let's look into the barrier methods। Barrier methods of contraception basically involves use of condoms।
सो स्पर्म्स जो So barrier method of contraception work on the principle of avoiding the physical meeting of the sperm with the ovum. इन बैरियर मेथड्स का प्रिंसिपल क्या है कि ये स्पर्म्स को फिजिकली ओवम से मिलने नहीं देते हैं, राइट? So the example of barrier methods are condoms. There are male condoms as well as female condoms available. Condoms are made up of rubber or latex sheath and they are used to cover the copulatory organ in male, which is the penis, and the vagina in the female. फीमेल में जो फीमेल कॉन्डम्स होती हैं उसका मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सीमेन इनसाइड द यूट्रस. So sperms are prevented from physically meeting with the ovum using barrier methods. How? By barriers, है ना? तो बैरियर मेथड्स का जो मेन प्रिंसिपल है, जैसे मैंने बोला कि हर मेथड का आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए. मेक अ टैबुलर फॉर्म, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप उसको एक टैबुलर फॉर्म में लिखते जाइए. मेथड लिखिए और सेकेंड कॉलम में प्रिंसिपल लिखिए. तो इसका प्रिंसिपल है फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम को प्रिवेंट करना. Popular barrier methods are condoms. We have male condoms and we have female condoms. So they are made up of, as I told, that they are made up of rubber or latex sheet. Now, condoms, they cover the penis in males and the vagina in case of female. अब वेजाइना जब कवर होता है तो फीमेल्स में क्या होता है? इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस ऑफ द फीमेल. अगर यूट्रस में ही एंटर नहीं करे, it prevents the ejaculated semen from entering the uterus of the female. अगर यूट्रस में ही सीमेन एंटर नहीं करेगा तो it will not reach the fallopian tube as well, जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है. इंडिया में जो मोस्ट कॉमन ब्रांड है कॉन्डम का, दैट इज निरोध. और निरोध का मतलब होता है टू प्रिवेंट. सो दिस कैन बी आस्क्ड. In India, easily wearable popular brand of condoms for males is Nirodh, which means prevention and it gives an additional benefit. इसके अलावा देखो सिर्फ एक बैरियर मेथड ही ऐसा है जो कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने के साथ साथ एक और एडवांटेज देता है यूजर्स को, दैट इज इट प्रिवेंट्स STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. क्योंकि आपका सीमेन कांटेक्ट में नहीं आएगा फीमेल के, तो इस केस में क्या होगा, इवन जो सेक्सुअल रास्ते से जाने वाले कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं सीमेन के थ्रू, वो भी नहीं पास हो पाएंगे टू दी फीमेल बॉडी. तो सबसे बड़ा एडवांटेज बैरियर मेथड का यही है कि दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. फीमेल बैरियर्स में और भी चीजें आती हैं कॉन्डम्स के अलावा, जैसे कि डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड द वॉल्स. ये भी आप फीमेल बैरियर मेथड्स में इंक्लूडेड है, विच हेल्प इन कवरिंग द यूट्रस और द. Then female barriers also include, apart from condom, other methods like diaphragms, vaults, cervical caps, which are used for covering the cervix or the vaginal region. ये जो barriers हैं, they are reusable, they can be reused and they are user friendly. They can be used by an individual on their own without the aid or help of any experts. Other barriers ये सारे हैं. इसके अलावा along with the cervical caps, diaphragms and vaults, some spermicidal creams, foams and jellies can be used which help in the phagocytosis of the sperm or the sperm killing. तो spermicidal creams जो इन बैरियर मेथड्स की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं. तो ये जो है spermicidal jellies, foams, ये इनके साथ जनरली यूज किए जाते हैं इन बैरियर्स के साथ. सो दे इंक्रीजेस द एफिशिएंसी. ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है. Then let's test our knowledge now, whatever we have done. सबसे पहले है read the following statement. The first statement says both male and female condoms are disposable. That's true.
Ball cervical caps and diaphragms are barriers, ये भी सही statements है. Then spermicidal creams, jellies and foams are used for early conception. No, this is a wrong statement. They are rather used to prevent conception. जल्दी conception नहीं बल्कि conception होने ही नहीं देना है. Then barriers are reusable and made of rubber. That's true. So you need to select the correct combination. We have 1, 2 and 4. So option number C, 1, 2 and 4 is the correct option. So next part is IUDs. अब तक हमने दो मेथड्स देख लिए, एक नेचुरल मेथड और नेचुरल मेथड कैसे प्रिवेंशन करते हैं. फिर हमने बैरियर मेथड देखा जिसका प्रिंसिपल था टू प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस आर IUCDs or we can call IUDs, intrauterine devices, or you can call them as intrauterine contraceptive devices. As the name suggests, intra means within. ठीक है? Uterine means uterus. So they are devices that are used for preventing conception or as contraceptions, and they are inserted within the uterus of the female through vagina. तो वेजाइना के थ्रू ये इंसर्ट किया जाता है फीमेल के यूट्रस में. नाउ IUDs आर नॉट इंसर्टेड बाय अ पर्सन ऑन इट्स ओन. Its insertion require the assistance of some experts only. So medical professionals ही ये insert करते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स IUDs के क्या हैं बेटा? IUDs जो है वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अमंग द फीमेल्स. ये मेथड जनरली यूज किया जाता है व्हेन द कपल वांट टू स्पेस चाइल्ड फॉर मोर देन 2-3 इयर्स, क्योंकि इसका कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू 5 इयर्स तक होता ही है. तो अगर लॉन्ग टर्म तक के लिए कोई फैमिली प्लानिंग नहीं चाहिए तो IUDs कैन बी यूज्ड. देन ये जो डिवाइसेस हैं अलग अलग वेराइटीज में अवेलेबल है. We have normal IUDs, we have hormone releasing IUDs, copper loaded IUDs. तो इन सभी IUDs का फंक्शन अलग अलग है, बट एक चीज कॉमन है कि IUDs they are preventing contraception by increasing either the phagocytosis of the sperm, or they affect the motility or fertilizing capacity of the sperm, or they can make the uterus unsuitable for the sperms. तो कौन सी IUD कैसे काम करेगी that we will see. IUDs, abbreviated intrauterine devices, abbreviated as IUDs. They are the devices which are inserted into the uterus through vagina, as I told. They are of different types. We have non-medicated IUDs. Example, Lippes loop. इसमें example याद रखना is very important. ये भी match the following के forms में ज़्यादा आता है, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपकी सभी नॉलेज को टेस्ट कर लिया जाए. तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है. नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है लिपीज लूप. कॉपर रिलीजिंग IUDs में आएगा कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. देन वी हैव हार्मोन रिलीजिंग IUDs, यानी ऐसी IUDs जो जब इंसर्ट की जाती हैं विद टाइम दे स्टार्ट रिलीजिंग हॉर्मोन्स लाइक प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20. अब ये IUDs क्या कर रहे हैं? They can increase the thickness of the cervical mucus so that the semen cannot get entry inside properly. They can even make inhibit the sperm movement. जैसे मैंने आपको बोला कि IUDs can even affect the motility of the sperm या fertilizing capacity of the sperm. Then these IUDs can even affect the uterus lining, making it unfit for implantation, so it can lead to thinning of lining of the uterus. तो IUDs अलग अलग वे में काम करती है. कौन सी IUD कैसे काम करेगी, that is important to learn along with the example. ये मल्टीलोड IUD है. ऐसे कॉपर टी भी होती है जो यूट्रस में इंसर्ट की जाती है.
एज आई टोल्ड आईयूडीज जो है वो क्या प्रमोट करते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, कि जब स्पर्म जो है यूट्रस में रिलीज होगा तो उसका ये फैगोसाइटोसिस करेंगे। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, है ना। When a cell eats up something, that is called phagocytosis due to cytoplasmic movements forming pseudopodia-like structure. तो यूट्रस में फैगोसाइटोसिस किसके थ्रू हो रहा है? How is it caused? With the help of WBC, so by white blood corpuscles. Then जो कॉपर आयंस वाली आईयूडीज हैं वो कैसे वर्क करती हैं? They work by suppressing the motility, viability and fertilizing capacity of the sperm. तो ये किन चीजों पे काम करता है? Viability, fertilizing capacity और mobility of the sperm को affect करता है या suppress करता है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में से जो कॉपर का रिलीज होता है उसका फंक्शन ये है, ठीक है। देन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कैसे काम करते हैं? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरेट, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जैसे ये आईयूडीज लाइनिंग को थिन कर देते हैं तो इम्प्लांटेशन हो नहीं पाता है, प्रिवेंटिंग योर प्रेगनेंसी। एंड दे कैन ऑल्सो वर्क बाय मेकिंग सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, उनको स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल या एंटागोनिस्टिक अनफ्रेंडली कर देना। तो हमने एक जनरल देखा था कि क्या क्या वर्किंग मैकेनिज्म हो सकते हैं, अब मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया है। नॉन मेडिकेटेड वाली फैगोसाइटोसिस करके, कॉपर रिलीजिंग बाय सप्रेसिंग द मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग एंड द वायबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म, और जो हमारी हार्मोन रिलीजिंग वाली है वो या तो सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देंगी या फिर यूट्रस को अनसूटेबल कर देंगे फॉर इम्प्लांटेशन। IUDs are ideal contraceptive for females, as I told कि this is one of the most common method of contraception in the India. Then IUDs is widely accepted method of contraception in India, as I said. ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आपको IUDs का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? लेट्स चेक आवर नॉलेज। सो बिफोर आई टेल यू द आंसर, यू शुड पॉज एंड टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। First is non-medicated IUDs are Lipi's loop, copper T, copper 7, multi-load 375. So obviously the answer is Lipi's loop. ठीक है, first ये तो copper releasing वाले हैं बाकी, so first is the answer. Next question, progestasert is so it's a hormone releasing IUD. Then the next question, copper releasing IUDs are number 1 copper T, yes, copper 7, yes, multi-load 375, yes, D all. So the correct answer is D all of the above. Next, चलिए पहले आंसर लिख ही दिया। hormone releasing IUDs are Lipi's loop, multi-load, so ये Lipi's loop तो non medicated में आता है बेटा। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर टी भी। LNG20 is an example of hormone releasing IUDs. If you are able to answer them correctly और इनके principles अच्छे से याद है तो आपका ये टॉपिक completely prepare हो चुका है। मेक श्योर कि आप इनके प्रिंसिपल्स जैसे मैंने आपको बोला है टैब्यूलर फॉर्म में बनाओ, एक तरफ मेथड लिखो, एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ एग्जाम्पल। सो मेक 3 कॉलम्स जैसे जैसे मैंने आपको प्रिंसिपल बताए, राइट इट डाउन एंड कीप रिवाइजिंग दैट ओनली। आपको बार बार वो चीज बुक में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The next method of contraceptions are oral contraceptive pills, also called as OCPs. Oral contraceptive pills are pills of either progesterone or progesterone estrogen combinations. इन pills को लिया जाता है contraceptions को prevent करने के लिए। They are suggested by the doctors and there is a course that you need to do of these pills. इन pills को during the
menstrual phase, you need to start taking this pill. So within first 5 days of menstrual cycle या menstrual phase आपको ये pill लेना शुरू करना होता है. Then it is taken for the next 21 days. फिर 21 days के बाद 7 days का एक break लेंगे आप, ठीक है. So after taking it for 21 days there is a break of 7 days. अब वो 7 days में आपका menstrual phase होगा next cycle का, and then again it has to be repeated till you want to delay and till it is advised by your doctor. So oral contraceptive pills, also known as OCPs, as I said कि इनको OCPs बोलते हैं. They are small doses of progesterone or progesterone estrogen combinations in the form of pill. तो या तो ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशंस होते हैं या फिर दे आर प्रोजेस्टेरॉन alone which is taken in the form of pills. They have to be taken daily for a period of 21 days. तो 21 days तक आपको लेना पड़ेगा, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. So menstrual cycle के पहले 5 दिन में ये शुरुआत होगी और फिर 21 days तक इसको repeat करना पड़ेगा. They are also one of the popular contraceptive method which is used by female. IUDs भी थे, ये भी है, तो ये भी एक popular method ही है contraception का. After a gap of 7 days, the course has to be repeated again. During which, अब ये 7 days का जो gap लिया है क्योंकि इस दौरान आपको menstrual phase हो रहा होगा या menstruation आपका flow हो रहा होगा. So how these contraceptive pills work? अब principle की बारी है. These contraceptive pills are going to disturb your hormone balance and therefore they will prevent or inhibit ovulation. तो ये ovulation नहीं होने देंगे, so they inhibit ovulation. One of the सर प्लीज मत करो, मैं 3 बार हो चुका है, मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, सब बातें करते हैं. इसमें कार्ड फुल होने वाला है इसीलिए मैं आता सच में रुको, कार्ड चेंज कर दूं. सर मैं नहीं रुक रही, मेरा कंटिन्यूएशन एक सेकंड बस, क्योंकि वो फ्री है. कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है. नहीं कर लेना ना, आधा घंटा ही ऐसे जल्दी आकर कर लेना. एग्जाम्पल क्या है? सहेली. सो सहेली इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज टेकन वंस इन अ वीक and it is one of the first non-steroidal contraceptive pill. जितनी भी contraceptive pills आती हैं, या आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि reproductive organ से related जो medicines होती हैं उसमें कहीं ना कहीं steroids होते हैं थोड़े बहुत अमाउंट में, जिसकी वजह से weight gain भी हो जाता है. पर सहेली पहली ऐसी contraceptive pill थी जो completely non-steroidal थी और इसके साइड इफेक्ट्स भी लीस्ट थे और कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू भी सबसे ज्यादा थी. तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पिल. कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू हाईएस्ट है, साइड इफेक्ट्स लीस्ट हैं और नॉन स्टेरॉइडल है. ये जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, व्हिच इज लोकेटेड इन लखनऊ. इसको वंस अ वीक पिल भी कहते हैं क्योंकि वीक में एक ही बार इसको लेना पड़ता है. तो सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि प्रिपेयर किया गया है विथ फ्यू साइड इफेक्ट्स, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू. इसका कॉन्ट्रासेप्शन वैल्यू भी बहुत ज्यादा है. पॉपुलरली इसको वंस अ वीक पिल कहते हैं क्योंकि ये वीक में एक बार लेनी पड़ती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी उन्हें 21 डेज के कोर्स में करना पड़ता है, फिर 7 डेज का ब्रेक एंड देन इफ यू वांट टू कंटिन्यू फिर 21 डेज का रिपीटिशन होता है. बट ये वीक में एक ही बार आपको लेना पड़ेगा. देन इट इज नॉन स्टेरॉइडल एज आई टोल्ड. Developed by whom? So it was developed by Central Drug Research Institute, which is located in Lucknow. इसके अलावा we have contraceptive injections. जब यही hormones या combination of hormones injections की form में
दिए जाते हैं। ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स भी होते हैं, वेजाइनल रिंग्स एंड स्किन पैचेस। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आई विल टेल यू। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस जो हैं वही प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस हैं जो इंजेक्शंस की फॉर्म में इंजेक्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी में। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। जो इम्प्लांट्स हैं दे आर अबाउट साइज ऑफ अ मैच स्टिक, और ये जो है मैच स्टिक्स डिसॉल्वेबल होते हैं, जो कि यही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन है जो स्किन के नीचे इम्प्लांट किए जाते हैं, एंड विद टाइम उनमें से ये हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। देयरफॉर दे विल प्रिवेंट द ओव्यूलेशन इन द बॉडी। So it is about the size of a matchstick or like a single rod, ठीक है, which is basically inserted under the skin with the help of a special applicator। अब ये skin के नीचे जब आपको insert किया जाएगा, this can only be done by a medical professional or a healthcare professional। So this is done by a healthcare provider only। What will they do? क्योंकि इनमें से again ये प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन रिलीज होंगे, तो ये आप फीमेल की बॉडी में क्या करेंगे, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे, देयरबाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। इम्प्लांट्स जो है वो 3 इयर्स तक इफेक्टिव होते हैं, सो दे आर इफेक्टिव अप टू 3 इयर्स। देन वेजाइनल रिंग्स क्या है? वेजाइनल रिंग एक प्लास्टिक की रिंग होती है जो इंसर्ट की जाती है वेजाइना में, that's why the name vaginal ring। They are quite flexible। They also release small doses of estrogen and progesterone। तो इन रिंग्स में से भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्मॉल डोजेस में रिलीज होता रहता है जो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा। सो स्मॉल डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आते हैं स्किन पैचेस पर। अब जो स्किन पैचेस होते हैं दे आर लोडेड विद द कॉन्ट्रासेप्टिव हॉर्मोन्स। जैसे वेजाइनल रिंग लोडेड थी कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन से, ऐसे ही स्किन पैचेस भी इन्हीं हार्मोन से लोडेड होते हैं एंड दे आर वर्न ऑन द स्किन, ठीक है। ये भी स्लोली क्या रिलीज करेंगे, हॉर्मोन्स जो कि प्रिवेंट करेगा ओव्यूलेशन एंड देन दी pregnancy। So they release progesterone, estrogen into the bloodstream to prevent pregnancy via preventing or inhibiting the ovulation, as I said। Then not just this, in case of emergency where the unprotected sex has देन इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि रेप केसेस में या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी ली जा सकती हैं जो प्रिवेंट कर सकती हैं कंसेप्शन को। एंड दीज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स इंक्लूड द ओरल पिल्स, देन इट ऑल्सो इंक्लूड IUDs जिसको विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स लेना पड़ता है। अगर विद इन 72 आवर्स में ऑफ द इंटरकोर्स में ये IUDs या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली गई तो इट कैन प्रिवेंट कंसेप्शन, चांसेस होते हैं, तो उनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोला जाता है। देखिए, द वेरी इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसीज आर इम्प्लांट्स भी हो सकते हैं, देन कॉपर बियरिंग IUDs, जैसे मैंने बोला कि IUDs है, और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। The very effective emergency contraceptives to avoid possible pregnancies include the copper bearing IUDs हो सकता है, और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन। दोनों ही चीजें बुक में मेंशन्ड है, क्लियरली अंडरलाइन कर लो। इट इज मेंशन्ड जहां पर आपका वो डायग्राम दिया वैसे ट्यूबेक्टोमी का जस्ट ऊपर वाले उसके पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन है कि IUDs और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर विद इन 72 आवर्स में ले ली जाए तो वो एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस बनते हैं, ठीक है। दोनों ही
या फिर खाली प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन। When is this method effective? So this method is effective in case of unprotected intercourse or in case of rape. When this emergency contraceptive should be used, so within 72 hours emergency contraceptives जो है use की जाती हैं of the intercourse। ठीक है, now see vaginal rings जो हमने बात की, जो वेजाइना को कवर करती है, और ये वेजाइनल रिंग्स जो है ये कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का। देन स्किन पैचेस हैं विच आर वर्न ऑन द स्किन अपर आउटर आर्म, जिसमें से धीरे धीरे ये हॉर्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड द सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है वो कंप्लीटली इरिवर्सिबल नहीं कहूंगी, बट नियरली इरिवर्सिबल होता है, थोड़ा उसको रिवर्स करना मुश्किल होता है। सो दिस इज ऑप्टेड ओनली व्हेन द कपल नो मोर वांट्स द फैमिली प्लानिंग नो मोर इन द फ्यूचर, तब ये लिया जा सकता है या ऑप्ट किया जा सकता है इस मेथड पर। इसमें दो तरीके हैं, एक फीमेल्स के लिए है, एक मेल के लिए है। फीमेल में सर्जिकल मेथड को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब से आया है, और मेल्स में इस सर्जिकल मेथड को बोला जाता है वेसेक्टोमी, विच कम्स फ्रॉम द वर्ड द वास डिफरेंस। क्या किया जाता है वेसेक्टोमी में? वास डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं। सो सर्जिकल मेथड वेसेक्टोमी फॉर मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर females, contraception in males, contraception in females। वेसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर मेल्स में, फीमेल्स में। यहाँ पर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस ऑन ईदर साइड इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिशंस इन द स्क्रोटम। थोड़ा सा इंसाइज करके इसको टाई करेंगे। या फिर ट्यूबेक्टोमी के केस में फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा रिमूव करके टाई अप कर दिया जाएगा। सो वास डिफरेंस क्या है? ट्यूब दैट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द कॉपुलेटरी डक्ट की तरफ लेके जाता है। फेलोपियन ट्यूब लेके जाता है, फर्टिलाइजेशन का भी साइट है, और ओवम या फिर जाइगोट वहां से यूट्रस तक आता है। तो जब यही कट और टाई हो चुके हैं, देन द पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द गेमीट इज ब्लॉक्ड। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आया, दे ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ द gametes। This method prevents the sperm from reaching the seminal vesicle, तो seminal vesicle तक ये पहुंचने नहीं देते हैं। ठीक है, और ये जो मेथड है that will block the entry of ova into the fallopian tube। The surgical reversibility of family planning operation is called recanalization। तो ये जो मेथड है इसको रिकैनलाइजेशन कहते हैं, अगर आप वापस से इसको रिवर्स करवाते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि ये कंप्लीटली इरिवर्सिबल नहीं होते, बट इनकी रिवर्सिबिलिटी थोड़ी पुअर है। तो अगर वापस से अगर आप इस मेथड को रिवर्स करवा रहे हैं तो उसे बोलते हैं रिकैनलाइजेशन, कि आपने वो जो कैनाल है या जो पाथवे है ट्रांसपोर्ट का उसको दोबारा बना दिया, इसलिए रिकैनलाइजेशन बोला जाएगा। सो सी वेसेक्टोमी में ये जो पार्ट है वास डिफरेंस का वो कट करके टाई अप कर दिया गया है, और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप किया है। Now abortion means to voluntarily terminate your pregnancy before the full gestation occurs। प्रेगनेंसी को खुद से वॉलेंटरली अपनी विल से टर्मिनेट कर देना, वी कैन ऑल्सो कॉल इट इंड्यूस्ड एबॉर्शन। जो एमटीपी है वो लीगलाइज्ड हुआ इंडिया में 1971 में, उसके मिसयूज को अवॉइड करने के लिए। जो एमटीपी है दैट्स द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, और कुछ ऐसे केसेस में जहां इट इज रिस्कियर टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, उस केस में भी MTP is the only solution। अब what is important to notice is कि MTP जो होता है वो safe होता है up to the 12 weeks तक of pregnancy। तो up to 12 weeks it is safe। उसके बाद the risk increases even for the life of the mother। So for the first
12 weeks it is safe to get it done. MTP, which is intentional or voluntarily terminating your pregnancy, as I said, before the full term of gestation, also known as induced abortion, जहाँ खुद से आप ये abort करवाते हैं, of course with the help of professional healthcare professionals. Government of India made an act in 1971, year याद रखना ज़रूरी है, to and legalized MTP to avoid its misuse. MTP is considered to be only available choice to get rid of unwanted pregnancy. So unwanted pregnancy से बचने के लिए यही एक choice होता है. Not just this, कुछ complicated pregnancies में भी जहाँ पर बहुत complication है और मदर की लाइफ के लिए ही बहुत रिस्की है, शी कंटिन्यूज टू कीप द बेबी, तो उस केस में भी MTP हेल्प करता है. MTP is inevitable solution in case where the continuation of pregnancy is fatal either to the mother or fetus or even both, या तो मदर के लिए या दोनों के लिए. Then it is safe up to 12 weeks. आप इसको मार्क कर लीजिए अपनी बुक में. Then next come amniocentesis in fertility and art, जो हम देखेंगे. amniocentesis की बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ कि एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है which is conducted to diagnose any congenital genetic defect in the fetus. अगर हम उसके लिए कुछ प्रिवेंशन या कुछ क्योर निकाल सकते हैं तो ये पहले से ही टेस्ट किया जाता है. अब एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, एक नीडल को इंसर्ट किया जाता है एमनियोटिक बैग में विच इज फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड. एमनियोटिक बैग या एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो होता है उसको वाटर बैग भी कहते हैं. उसके फ्लूइड के अंदर स्किन सेल्स होते हैं फीटस के, उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेल्स नीचे सेटल हो जाते हैं. जो सेल नीचे सेटल होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उनका फिर कैरियोटाइपिंग यानी आप क्रोमोसोमल पैटर्न पढ़ सकते हैं और कोई भी क्रोमोसोमल एब्रेशन को डायग्नोस कर सकते हैं. सो एमनियोसेंटेसिस, एक क्विक रिकैप देखते हैं. इट्स अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू डिटेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट इन द अनबॉर्न बेबी. कोई भी अगर जेनेटिक डिफेक्ट है. In this procedure, usually a needle is inserted through mother's abdominal wall into the amniotic sac, जिसको water bag भी कहा जाएगा. Puncturing the sac carefully is done by the physician. तो ये कोई physician ही कर सकते हैं. For what purpose? To extract the amniotic fluid, जिसके अंदर बेबी के fetal cells होंगे. The fetal cells are separated from the extracted sample using the centrifuge technique. Fetal cell मतलब the embryonic cell in the mother's womb. Amniotic fluid और amniotic sac को sac में से extract करके जो भी पूरा sample आएगा उसमें से fetal cells को हम separate कर लेंगे. The chromosomes of the stained fetal cells are examined for the abnormalities. फिर उस cells में chromosome staining या karyotyping करके chromosome को जो है observe किया जाएगा for any aberrations that can cause Down syndrome. अगर Down syndrome is due to extra copy of chromosome 21, Edward syndrome, Turner syndrome, तो ये सारे chromosomal aberrations हैं जो डिटेक्ट किए जा सकते हैं अनबॉर्न बेबी में एमनियोसेंटेसिस के थ्रू. तो ये देखो, ये जो है प्लासेंटा है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस, यूट्रस, एमनियोटिक सैक उसके अराउंड, इसके अंदर फ्लूइड होती है एमनियोटिक फ्लूइड जो प्रिवेंट करती है डेसिकेशन ऑफ द फीटस. इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एज वेल. तो इसी में ही नीडल को इंजेक्ट किया जाएगा और फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करेंगे जिसमें देखो फीटल के भी सेल्स आ चुके हैं. फिर सैंपल में से फीटल सेल्स को सेपरेट कर दिया जाएगा यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, जो नीचे के पार्ट में टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाएंगे बीइंग डेंसर, और फिर उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है. एग्जामिनेशन के टाइम यू कैन ऑल्सो नो द सेक्स ऑफ द बेबी बट दैट इज कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया एंड इज एन ऑफेंस. You cannot determine the sex of the baby, unborn baby, क्योंकि it is generally followed by female feticide, MTP करके ही, तो वो बिल्कुल बैन कर दिया गया है इंडिया में.
I hope the MTP and the amniocentesis part is very clear to you. Now we will head towards the last part of the chapter, which include infertility and assisted reproductive technology. So now, what do we mean by infertility? Infertility means inability to conceive or to reproduce. So infertility, it's the biological inability of a person to contribute to conception, or we can say inability to conceive. It is to be noted that a large number of couples in the conceivable age all over the world are childless. So बहुत से ऐसे couples हैं जो कि reproductive stage में हैं, but still they are unable to conceive. अब ऐसे cases में generally it is the female partner which is blamed by the society, but according to the fact and the data, in the infertile couple, it is majorly the male partner who has a problem than the female. That's what the data says. So the crux is that neither of them should be blamed for the infertile cases. This inability can be treated now with the new technology that has come up and acting as a boon or a blessing for these couples, which is called assisted reproductive technology. The possible reasons for infertility. तो infertility के reasons क्या क्या हो सकते हैं? They can be physical reason, हो सकता है कोई genetic problem हो सकती है, कुछ disease हो सकता है, drugs की वजह से हो सकता है, फिजियोलॉजिक साइकोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, या फिर इम्यूनोलॉजिकल रीजन. तो जो इनफर्टिलिटी का रीजन है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है. किसी भी पार्टनर में ये प्रॉब्लम हो सकती है. इट कैन बी इन द मेल पार्टनर और द फीमेल पार्टनर. नन शुड बी ब्लेम्ड फॉर इट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. डू यू नो, in India, female partners are often blamed for not conceiving. However, in many cases, the problem lies with the male partner as per the data. This problem could be rectified by the infertility clinics. लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब we have the new technology, art और बहुत सारे infertility clinic हैं जो इन problems से deal करते हैं. They help in diagnosis कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों कंसीविंग नहीं हो पा रही, और उसके बाद फिर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं इन डिसऑर्डर्स के लिए. It help the couple to have it, and they enable the couple to have children in a very natural way. तो जितने भी infertility clinics हैं वो यही वो इन्हीं कपल्स की हेल्प करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से बेस्ड ऑन वट एवर द प्रॉब्लम the cause of the problem is, they will decide a treatment and then they will help them to conceive in a very natural way, and hence such problems should not be blamed on any partner, rather they should be motivated, and these problems can now be solved by a new technology in the science field, which is called ART, that is assisted reproductive technology. तो ये एक स्पेशल टेक्निक है जो असिस्ट करती है इनफर्टाइल कपल्स को टू हैव चिल्ड्रन. ठीक है, ताकि दे कैन हैव देयर बेबीज. Now, what all techniques are included under ART? तो ART जो है assisted reproductive technology, उसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं. किस टेक्निक को कब यूज करना है ये हमें समझना पड़ेगा, और किस टेक्निक में क्या होता है ये भी. तो जैसे आपने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के लिए मैंने आपको बोला एक टैबुलर फॉर्म बनाइए, इसी तरीके से आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के मेथड्स में भी टैबुलर फॉर्म में बनाइए. एक तरफ मेथड का नाम लिखेंगे, फिर एक तरफ किस केस में वो टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे. ठीक है, तो पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर. फिर इसमें हम देखेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इन सभी टेक्निक्स को हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन.
आपको इन विट्रो का मीनिंग समझ में आना चाहिए। एक वर्ड होता है इन विवो और एक वर्ड है इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड बॉडी। सो आउटसाइड बॉडी है तो किस में होगा ये? दिस विल बी इनसाइड टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और अगर कोई भी प्रोसेस इनसाइड अ लिविंग सेल होता है तो उसके लिए वर्ड होता है इन विवो। यहाँ पर वर्ड है इन विट्रो। विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। सो IVF involve fertilization of ovum and sperm outside the woman body, which is inside the test tube. Once the fertilization occur, the zygote which is formed is transferred either into the fallopian tube or the uterus. So IVF is followed by embryo transfer. अगर आपका एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में है यानी अप टू 8 ब्लास्टोम ईयर्स तो वो ट्रांसफर किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, जिसे जिफ्ट कहते हैं, ZIFT, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर आपका एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर का हो गया है तो उसको यूट्रस में फिर इम्प्लांट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, विच इज कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर फॉर फर्दर डेवलपमेंट। So once the fertilization has occurred, the embryo transfer is done. या तो zygote up to 8 ब्लास्टोम ईयर। क्वेश्चन यही आने वाला है नीट में कि किस स्टेज पर ट्रांसफर किया जाता है। Early embryonic stage with 8 blastom year is transferred into the mother's fallopian tube, तो इसको बोलते हैं जिफ्ट, ठीक है, zygote intrafallopian transfer। And more than 8 blastom year embryo is transferred into the uterus, जिसको बोलते हैं IUT। तो 8 से ज्यादा ब्लास्टोम ईयर का है तो इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर होता है और 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर किया जाता है। और ऐसे प्रोसीजर से बनने वाले बेबीज को ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। सो पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। प्रोसेस देखते हैं कि क्या किया जाता है। ऐसे केस में सबसे पहले ओवा को कलेक्ट किया जाता है या तो वाइफ से। इफ वाइफ इज प्रोड्यूसिंग द ओवम प्रॉपरली तो उसी से ही लिया जाएगा, और अगर ओवम का ही प्रॉब्लम है वाइफ में तो फिर किसी डोनर, फीमेल डोनर से। Then a sperm from the husband or the male donor, whatever is the case, is taken. उसके बाद इन दोनों को ही फर्टिलाइज किया जाएगा कलेक्ट करके, किसमें? एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म ज़ाइगोट इन अ टेस्ट ट्यूब विच इज फर्टिलाइजेशन। इंड्यूस मतलब स्टिम्युलेट, क्योंकि जब नेचुरल फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल तो वहां पर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में सीखे हैं, जैसे पॉलीब्लॉक पॉलीस्पर्मी है, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी है, जैसे फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, वॉल का डिसोल्यूशन होना एक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू, तो वो सब चीजें नेचुरली इंड्यूस्ड होती हैं हमारे बॉडी में। बट बिकॉज दिस प्रोसेस इज डन आउटसाइड द बॉडी तो इनको स्टिम्युलेट करवाना पड़ता है कि वो फर्टिलाइज हो जाए अंडर स्टिम्युलेटेड कंडीशंस। If the mother's uterus is not medically fit to receive the embryo produced in vitro, it can be implanted in the uterus of another woman. तो अगर जिन कपल के लिए ये टेक्निक की जा रही है उस केस में जो फीमेल पार्टनर है, अगर उनका यूट्रस मेडिकली फिट नहीं है टू कैरी द एम्ब्रियो 49 लॉन्ग मंथ्स तो किसी और वुमेन के यूट्रस में इम्प्लांट किया जा सकता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सरोगेसी। तो उन ऐसी मदर्स को सरोगेट मदर्स बोलते हैं। तो देखो स्पर्म और एग को कलेक्ट किया गया है and then they are being stimulated to fertilize in a test tube. एम्ब्रियो जो बनेगा फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, अगर 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक की बात है तो फेलोपियन ट्यूब में, और मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर वाला यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। नीट में यही क्वेश्चन आने वाला है कि 8 ब्लास्टोम ईयर्स वाला कहाँ पर ट्रांसप्लांट करना है, इम्प्लांट करना है, और मोर देन 8 ब्लास्टोम ईयर वाला, ठीक है। इस टेक्निक को ही हम IVF बोलते हैं।
इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टेक्निक प्रॉपरली, तो अब इसकी नॉलेज हम टेस्ट करते हैं कि हमें आया या नहीं. If the zygote or early embryo with 8 blastomere is introduced into the fallopian tube, तो उसको क्या बोलेंगे? क्योंकि 8 ब्लास्टोमियर्स तक है तो इसको बोलेंगे zygote intrafallopian transfer, SIFT in short. MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy can be harmful, true. Fatal either to mother or both, true. Unwanted pregnancy, so all of the above. सारे ही सही हैं इन सब. Now the next question. If an embryo with more than 8 blastomere is transferred into the mother's uterus for further development, it is called. तो more than 8 blastomere वाला बेटा कहाँ पे ट्रांसफर होता है? It is transferred inside the uterus, so it is called as intrauterine transfer, IUT in short. So option A is the correct option. So the next technique is GIFT, which is gamete intrafallopian transfer. इस केस में जो गेमीट होता है उसे ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. This technique is used in case of couple जहाँ पर woman or the female partner is unable to produce a gamete, but her uterus is fit for carrying the baby or implantation. तो ऐसे केस में एक डोनर फीमेल से एग या गेमीट लेके फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज ट्रांसफर्ड, इसलिए इसको बोलते हैं गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. It says some women cannot produce ova due to defects in the ovaries but can provide suitable environment for fertilization and the development of the embryo in their uterus. तो ये चीज आपको समझनी है कि ये कब किया जाता है? जब फीमेल is unable to produce a functional ova, क्योंकि कुछ ओवरी में प्रॉब्लम है बट उनका यूट्रस जो है वो फिट है, that is fit for implantation and carrying the baby for the 9 long months. उस केस में ये टेक्निक को अप्लाई किया जाता है. तो क्या क्या करेंगे इस केस में देखते हैं. In such cases, ovum is collected from a donor, is transferred to the fallopian tube of the recipient woman for fertilization. तो एक डोनर से हम ओवम लेंगे विच इज द गेमीट, और फिर उसको फीमेल रेसिपिएंट फीमेल जिनके लिए किया जा रहा है उनके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है. क्योंकि गेमीट को ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. सो दिस डोनर जो होगा वो डोनर फीमेल वो होती है जो अपना ओवम डोनेट करने वाली है. तो यहाँ पर एग्स जो हैं देखो लिए गए और उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया है. किसके? यहाँ पे ये देखिए फेलोपियन ट्यूब में रेसिपिएंट वुमेन के ट्रांसफर किया गया है. नेक्स्ट टेक्निक इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. एज द नेम सजेस्ट, इस टेक्निक में जो सीमेन है या जो स्पर्म है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है into the cytoplasm of the egg. तो एग को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं स्पर्म के साथ. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, specialized procedure in which the sperm is directly injected into the egg or the ovum with the help of a microscopic needle to form the embryo in the laboratory. तो डायरेक्टली जब उसमें इंजेक्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन वहीं हो जाएगा और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा. ये बहुत केयरफुली किया जाता है बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और इसमें एक बहुत ही छोटी सी माइक्रोस्कोपिक नीडल ली जाती है, उसके थ्रू स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. इसलिए टेक्निक का नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है, जो एम्ब्रियो अब बनेगा वो ट्रांसफर कर दिया जाता है या तो यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब में फॉर फर्दर डेवलपमेंट. अब वो डिपेंड करेगा, अगर 8 ब्लास्टोमियर्स तक का है तो फेलोपियन ट्यूब में डालेंगे, बट अगर 8 ब्लास्टोमियर्स से ज्यादा है एम्ब्रियो, ज्यादा सेल्स का है, तो उसे फिर यूट्रस में ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा. बोन टू द कपल वेयर देयर इज डिक्रीज इन स्पर्म काउंट.
अब ये टेक्निक कब यूज की जाएगी? दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द स्पर्म काउंट ऑफ द मेल पार्टनर इज लेस। ठीक है, जो गिफ्ट था यानी गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कब कर रहे थे? जब कपल की जो फीमेल पार्टनर है वो एग या फिर ओवम बना नहीं पा रही है। इस केस को तब यूज किया जाता है जब कपल में जो स्पर्म काउंट है वो कम है, जिसकी वजह से प्रॉपर से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज स्पर्म्स आर ऑलरेडी लेस इन दी सीमेन। तो ऐसे केस में इस टेक्निक को अप्लाई किया जा सकता है। ये देखिए, एक माइक्रो नीडल होती है और उसके थ्रू एग में इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को। ठीक है, ये देखिए, इस नीडल के थ्रू स्पर्म का हेड है और फिर इसमें, क्योंकि द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन द न्यूक्लियस और फर्टिलाइजेशन के टाइम द स्पर्म इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग इट्स न्यूक्लियस, है ना, और एक सेंट्रियोल। नेक्स्ट इज AI विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इस केस में जो सीमेन है वो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। तो यहाँ पर इंसेमिनेशन किया गया है फीमेल का डायरेक्टली, तो वेजाइना में इसको इंसर्ट किया जाता है। सो इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी ईदर ड्यू टू, अब ये कब यूज होगा? या तो इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट into the female or due to very low sperm count। तो ये low sperm count के केस में भी यूज हो सकता है, या फिर the male is unable to inseminate the female। तो दोनों ही केस में ये टेक्निक यूज हो सकती है। हर टेक्निक कब यूज होती है ये आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन केस की फॉर्म में दिए जाएंगे एंड देन विद इन दैट केस दे विल आस्क यू कि ऐसा ऐसा डिफेक्ट है, तो आप कौन सी टेक्निक चूज करते हैं ऑप्शंस में से। तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सी टेक्निक यूज हो रही है। ये टेक्निक यूज होगी जब या तो मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं या उनका स्पर्म काउंट लो है। अब इस टेक्निक में होगा क्या? In this technique, the semen is collected from the husband or the donor and is introduced into the uterus through the vagina only for achieving fertilization. So that is called intrauterine insemination, IUI. ठीक है, तो यूट्रस में डाला जाता है सीमेन वेजाइना के थ्रू, और वो सीमेन या तो डोनर से कलेक्ट करते हैं या हस्बैंड से ही कलेक्ट किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है सरोगेसी। सो सरोगेसी इज द प्रोसीजर, सो सरोगेसी इज सजेस्टेड इन द इंस्टेंसेस जहाँ पे वुमेन को कंसीविंग में प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज हर यूट्रस इज लिटिल अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन एंड कैरिंग दी प्रेगनेंसी। तो उस केस में क्या होता है कि फिर फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में करवा के किसी और वुमेन की यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। Surrogacy suggests in instances where the women have problem with conceiving or providing a suitable environment for the development of the embryo in her uterus। वो environment नहीं दे सकती है। The ovum of the wife or the donor, if she is producing a good ovum, तो उन्हीं से लिया जाएगा, and the sperm from the husband or the donor are fertilized and the zygote is transferred into the womb of the surrogate mother। हालांकि सरोगेसी अब इलीगल भी हो गया है, बट पहले होता था। अब बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस इट इज नॉट अलाउड इन मैनी कंट्रीज। तो यस, सरोगेसी जो है वो सरोगेट मदर। अब हालांकि काफ़ी कंट्रीज में सरोगेसी जो है इज कंसिडर्ड एज illegal or it is not allowed because of many reasons, but I have told you who are surrogate mothers और surrogacy क्या होता है, कब करी जाती है। So एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सभी टेक्निक्स का। सबसे पहले हमने सीखा IVF इन एम्ब्रियो ट्रांसफर। IVF इज फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द वुमेन बॉडी। इस केस में कपल या किसी हेल्दी डोनर से गेमीट्स को लेकर फर्टिलाइज किया जाता है टेस्ट ट्यूब्स में,
दे आर फर्टिलाइज्ड अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशंस और फिर वो जाइगोट को एम्ब्रियो फॉर्मेशन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफ़र किया जाता है, या तो यूट्रस में या फिर फेलोपियन ट्यूब में। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज है 8 ब्लास्टोमियर्स वाली, तब आप फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हो। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स वाला यूट्रस में ट्रांसफ़र होता है। आफ्टर द IVF एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हमने देखा, फिर नेक्स्ट हमने देखा गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। सो गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र इन शॉर्ट गिफ्ट, इस केस में जो गेमीट है वो ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द रेसिपिएंट वुमेन। ये टेक्निक यूज़ की जाती है उन केसेस में जहाँ पर वुमेन का यूट्रस तो फिट है फॉर इम्प्लांटेशन एंड कैरिंग द बेबी फॉर द 9 months of gestation period, but she is unable to produce a ovum due to some problem in the ovary। तो ऐसे केस में किसी और डोनर फीमेल से ओवम को लिया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। थर्ड टेक्निक हमने देखी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, विच इज़ डन इन केस वेयर द male partner is unable to inseminate the female partner or his sperm count is very low। तो ऐसे केस में सीमेन को डायरेक्टली डाला जाता है यूट्रस ऑफ द फीमेल में थ्रू द वेजाइना, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक हमने देखा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एज द नेम सजेस्ट, जहाँ पे स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ये टेक्निक उन कपल्स के लिए यूज होता है जहाँ पर जो सीमेन में स्पर्म काउंट होता है वो कम होता है, तो उस केस में ये यूज कर सकते हैं। और फिर हमने सरोगेसी, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि जिस केस में फीमेल का यूट्रस अनफिट है फॉर द इम्प्लांटेशन और कैरिंग द बेबी, उस केस में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करके किसी और वुमेन विच इज़ कॉल्ड द सरोगेट मदर की वूम में डाला जाता है। बट जैसे मैंने कहा बहुत जगह पर ये सरोगेसी अब इलीगल हो गई है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। Now, after the quick recap, let's check our knowledge a bit. Which technique is a boon to the couple where there is decrease in the sperm count? So, sperm count में अगर decrease है तो it will be intracytoplasmic sperm injection. Artificial insemination is more when the male partner is unable to inseminate. Most appropriate या ज़्यादा अच्छा लो स्पर्म काउंट के केस में जनरली ये वाला टेक्निक ज़्यादा यूज़ किया जाता है, IC। So with this we come to the end of the chapter. I really hope you have understood every topic of the chapter properly. I have tried to give you insight to every topic. If you have any questions, any doubt, you can let me know in the comment section. I'll solve them. Till then, keep streaming our channel. Stay tuned to our channel for more videos of different subjects like physics, chemistry, mathematics, biology. More videos will be coming out. If you really like my video, please like, share and subscribe to our channel. And let me also know in the comment section which chapter you want me to cover in the next video. Till then, stay happy, keep smiling. All the best.